Very good afternoon to my respected principal ma'am, teachers, seniors, and my dear friends. First, I want to introduce my group. I am speaker number first, Sonu Jangir. I'm speaker number second, Sagar Jadwa. I am speaker number third, Swati Roila. I am speaker number 4, Swati Ambesh. I am speaker number 5, Ritu Daniva. Slide visible है? हाँ है सोनू, slide visible. So today I am presenting the topic nervous system disorder. Well, what we understood by nervous system disorder? Before this, we should know about what is nervous system. What is nervous system? Nervous system is a complex system that regulate and coordinate body activities. It is made of two major divisions, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system consists two parts, brain and spinal cord. And peripheral nervous system consists all neural include peripheral nerve plus autonomic nerve. And the introduction of the nervous system disorder. Disease of nervous system are fairly common in children. Almost 20 to 30% of children are victim of neurological illness. There are major contribute to childhood morbidity and disability. Nervous system disorder. When something goes wrong with part of nervous system, there are many troubles occur like speaking, swallowing, breathing, and learning. There are more than 600 diseases. This type includes disease caused by fault disease such as Huntington disease and muscular dystrophy. What is Huntington disease? Huntington disease एज जो होती है वो ब्रेकआउट हो जाती है. ये टिपिकली 13 to 14 ईयर में स्टार्ट होता है. And what is muscular dystrophy? A group of genetic disease that cause progressive weakness and loss of muscle mass. And the second point is problem with the way the nervous system develops, such as spina bifida. What is spina bifida? इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी टाइम में ही बेबी की जो बैकबोन होती है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाती है. Degenerative disease, where nerve cells are damaged or die, such as Parkinson disease and Alzheimer disease. We will discuss this further. And the fourth point is disease of the blood vessels that supply the brain, such as stroke. Stroke क्या होता है? Disease of the blood vessels that supply the brain, such as stroke. मीन्स ब्लड सप्लाई में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए जिसका सीधा इफेक्ट ब्रेन पर हो वही स्ट्रोक होता है. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज इंजुरी point is a seizure disorder such as epilepsy, cancer such as meningitis. And the first nervous system disorder is Alzheimer disease. Alzheimer disease क्या होता है? A disease of the nerves wherein a person has deterioration of his memory, thinking and reasoning. इसमें जो होती है ब्रेन की काम करने की कैपेसिटी जो होती है एकदम खत्म हो जाती है. जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं हेल्दी ब्रेन साइज कितना होता है और एक उनको अल्जाइमर डिजीज होती है तो उसका ब्रेन कैसे श्रिंक हो जाता है. एंड द सेकंड इज एंसेफेलाइटिस. एंसेफेलाइटिस क्या होती है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन. कॉज होता है इसका वायरस एंड केमिकल. एंड इसके सिम्टम्स होते हैं फीवर, लेथार्जी, एक्सट्रीम वीकनेस, विजुअल डिस्टर्बेंस. ये थर्ड है कार्पल टनल सिंड्रोम. Disorder caused by the compression at the wrist of the median nerve supplying the hand, causing numbness and tingling. Fourth is epilepsy. Epilepsy एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें नर्व सेल्स की कंडीशंस जो होती है वो बिगड़ जाती है, जिससे कन्वर्जन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं. जेनेटिक डिसऑर्डर या ब्रेन स्ट्रोक की वजह से भी एपिलेप्सी हो सकता है. Epilepsy is a disorder of the nervous system wherein the person has seizure that often involve convulsion or the loss of the consciousness. And the fifth is Huntington disease, inherited progressive disease causing uncontrollable physical movement and the mental deterioration. Huntington disease affects the brain's basal ganglia. And the sixth is a migraine, particularly intense from the form of
headache. Blood vessels abnormalities are a component of vascular headaches such as migraine and cluster headache. The seventh is the Parkinson disease. Parkinson disease क्या होता है? इसमें बॉडी के पार्ट जो होती है वो कंपन करते रहते हैं. ब्रेन में नर्व सेल को कोई भी लॉस होता है तो डोपामाइन जो होता है उसका लेवल जो होता है एकदम से डाउन हो जाता है, जिससे पार्किंसन के सिम्टम्स अकर होते हैं. Parkinson, a progressive disease in which cell in one of the movement control center of the brain begin to die, resulting in a loss of control over speech and head and body movement. You can see in the image rigidity and trembling of head, rigidity and trembling of extremities, forward tilt of tongue, reduced arm swinging, and suffering gait with the short step. And the next is a Bell's palsy. Bell's palsy क्या होता है? Bell's palsy is a sudden weakness or paralysis of the facial muscles or one side of the face. ये especially affect करता है seventh is difficulty closing and drooping eyelid, drooping mouth and with difficulty closing drinking, facial nerve which control the muscles in the face. And the next is meningitis. What is meningitis? Meningitis is defined as an inflammation of the meningine covering the brain, and it is sign and symptoms of the nervous system disorder: muscle weakness, numbness, fatigue, slurred speech, vision disturbance, vertigo, ataxia, dysphagia, bowel or bladder problems, sexual dysfunction, mood alteration. After this, for the further step, speaker number 2. Thank you. Good. I presenting on slide. My topic is neurofibromatosis. स्लाइड प्रेजेंट हो रही है सबको? हेलो. Yes, Sagar. Yes, I will start. My topic is neurofibromatosis. Neurofibromatosis, it is a brain disorder. Definition: neurofibroma is a genetic disorder that causes tumor of form on nervous tissue. These tumor can develop and wear in nervous system. इसमें क्या होता है? ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है. इसके अंदर एक प्रोटीन होती है न्यूरोफाइब्रोमिन एंड मर्लिन प्रोटीन. तो उसमें ये क्या करती है? सेल ग्रोथ होती है, उसको कंट्रोल करती है जो नर्वस सिस्टम के अंदर. सॉरी. तो इसमें क्या होता है कि जेनेटिक म्यूटेशन के कारण वो प्रोटीन है उनका लॉस हो जाता है, उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो जो सेल ग्रोथ होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है, जिससे स्किन के नीचे, ब्रेन के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ट्यूमर डेवलप हो जाते हैं. तो इससे बहुत सारी डिफिकल्टीज आते हैं, सिम्टम्स आते हैं. इस न्यूरोफाइब्रोमा का एनएफ1, तो उसका नाम वॉन रैकलैंगसिन बोला जाता है. डिस्क्राइब किया था 82 में इन्होंने उनको जेनेटिक डिसऑर्डर डिस्क्राइब किया था. लेकिन इसका जो फर्स्ट केस था वो 1873 में वॉन मिचेल ने देखा था. उनको जो पेशेंट थे उनको ऑप्टिक ग्लायोमा था, जो इसका एक सिम्टम होता है न्यूरोफाइब्रोमा का. पैथोफिजियोलॉजी के अंदर जो इसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन होता है. जेनेटिक म्यूटेशन के बाद में जो न्यूरोफाइब्रोमिन प्रोटीन होती है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है. उसकी वजह से जो सेल ग्रोथ है वो अनकंट्रोल हो जाती है. तो जो स्किन के नीचे अंडर आर्म, पेट, फेस पे, चेस्ट पे, बैक पे, ग्रोइन रीजन पे, फेस पे, इस पे छोटे पी साइज के ट्यूमर बन जाते हैं. नॉन कैंसरस ट्यूमर भी होते हैं, लेकिन बाद में कैंसरस फॉर्म मैग्लिनेंट हो जाते हैं. Cause: neurofibroma caused by genetic disorder mutation. Either the pass of parent occur spontaneously of conception. Specific gene involved depend on the type of autosomal genes होते हैं, वो आइडेंटिफाई होते हैं कि इस जीन की स्पेसिफिक जीन की वजह से इसको दो टाइप्स में बांट दिया: न्यूरोफाइब्रोमा फर्स्ट, न्यूरोफाइब्रोमा सेकेंड. और neurofibroma first, the NF gene located on the chromosome number 17. This gene produces a protein
कॉल्ड न्यूरोफाइब्रोमिन जीन होता है न्यूरोफाइब्रोमा वाला। इट कंट्रोल सेल ग्रोथ, लॉस द प्रोटीन सेल ग्रोथ एंड कंट्रोल। कि जो क्रोमोसोम नंबर 17 है वहां पे जीन म्यूटेट होता है, उसकी वजह से जो न्यूरोफाइब्रोमिन प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है, इस वजह से सेल ग्रोथ है अनकंट्रोल हो जाती है। ये बेसिकली किड्स में होता है। न्यूरोफाइब्रोमा NF2। NF2 जी इसके अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर 20 है वहां पे म्यूटेशन हो जाता है जिससे मर्लिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये भी जो सेल ग्रोथ है उसको कंट्रोल करती है, जिससे ये प्रोटीन के एब्सेंस में सेल ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाती है, जिससे नर्व पे ट्यूमर बन जाते हैं। Risk factor. The biggest risk factor formation neurofibroma is family history of the disorder. It is ये बेसिकली ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होता है। जो भी पेरेंट अफेक्टेड होता है तो इसमें 50% चांसेस रहता है कि चाइल्ड को भी न्यूरोफाइब्रोमा हो सकता है। जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, ऑल अफेक्टेड फादर एंड अफेक्टेड मदर। तो अफेक्टेड फादर एंड अफेक्टेड चाइल्ड, फिर अनअफेक्टेड चाइल्ड, फिर अनअफेक्टेड चाइल्ड अनअफेक्टेड होता है। न्यूरोफाइब्रोमा सिम्टम्स फर्स्ट के फ्लैट लाइट ब्राउन ऑफ द स्किन, कैफे आउटलेट स्पॉट। इसके अंदर क्या होता है कि जो किड्स होते हैं उसके अंदर स्किन पे एक कॉफी लाइक कॉफी होती है, स्मूथ होती है, कॉफी जैसा कलर है, तो स्किन के ऊपर एक स्पॉट्स आता है एक राउंड शेप में, जो बिल्कुल ऐसा कॉफी होती है उसके जैसा सेम होता है कलर उसका, उसकी स्मूथनेस सेम पिगमेंट आता है। सेकंड सिम्टम फ्रैंकिंग इन द आर्मपिट ऑफ ग्रोइन एरिया। ग्रोइन एरिया पे फ्रैंकिंग आ जाते हैं। फ्रैंकिंग सेम ऐसे होता है कि जैसे कॉफी के छोटे छोटे दाने होते हैं वह किसी ऐसे स्किन पे ऊपर गिरे हुए हैं, लाइक पिक्चर दिख रही है जैसे सेकंड नंबर पे दिखाया गया है। तो आर्मपिट के अंदर ऐसे स्किन पे छोटे छोटे ये धब्बे से दिख रहे हैं, तो स्किन फ्रैंकिंग हो जाती है आर्मपिट पे और ग्रोइन रीजन पे। टिन्नी बम्प्स ऑफ आइरिस ऑफ द आई, लिस्ट नोडुल। आई के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे नोडुल्स दिखने लग जाते हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग में अपन इनको सीन नहीं कर सकते, वेदर कैन नॉट इजीली आंखों से नॉर्मल आई से उससे सीन नहीं कर सकते। बाद में जब कंडीशन 3 ईयर 4 ईयर तब आके सिम्टम्स ऑफ है। लर्निंग डिसेबिलिटीज, इसमें क्या होता है कि जो ट्यूमर है वो सेंट्रल नर्व सिस्टम उसके अंदर बनने लगते हैं। जो नर्व के अंदर ट्यूमर बन जाते हैं तो जो किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उन लोगों को लर्निंग डिसेबिलिटीज में आ जाती है, फॉरगेटफुलनेस हो जाती है, चीजें याद नहीं होती है, वो ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, वो परेशान रहते हैं, हेडेक वगैरह होता है, तो ये चीजें सिम्टम में देखने को मिलती है। फाइव सिम्टम सॉफ्ट पी साइज बम्प्स ऑफ अंडर द स्किन एंड न्यूरोफाइब्रोमास। इसके अंदर जो स्किन है उसके ऊपर नॉन कैंसरियस होते हैं, इनमें कईयों में सेंसलेस भी होते हैं। सिम्टम है बोन डिफॉर्मिटीज हो जाती है, इसमें मिनरल्स, बोन को मिनरल्स नहीं मिल पाते, इसलिए वीकनेस, बोन के अंदर वीकनेस हो जाती है, वीक हो जाती है इजीली। ट्यूमर ऑफ ऑप्टिक गायब है, और जो ऑप्टिक नर्व होती है उसके अंदर ट्यूमर बन जाता है, जिससे विजन में डिफेक्टेड आ जाता, विजन प्रॉब्लम हो जाती है, दिखता नहीं है, और जब कंडीशन वास्ट हो जाती है तो विजन लॉस का भी रहता है। लार्जर देन एवरेज हेड साइज, जो हेड साइज है बेसिकली वो उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हेड साइज, जो बच्चों का हेड साइज है वो लार्ज दिखने लगता है। Neurofibroma second, it is less common than NF first, and symptoms of NF2 usually result from the development beginning. The growing tumor is both ear. Acoustic neurofibroma. Tumor grow on the nerve that carries sound and balance information from inner ear to brain. इसके अंदर न्यूरोफाइब्रोमा सेकंड के अंदर क्या होता है कि acoustic न्यूरोफाइब्रोमा कि जो अपने ईयर है, ईयर के जो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है उसके अंदर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है ये बैलेंस एंड साउंड के लिए कैरीज करती है इंफॉर्मेशन, तो ब्रेन को लेके जाती है। तो जो ईयर वाला फंक्शन है और बैलेंस वाला फंक्शन है, ग्रेजुअली धीरे धीरे डिस्टर्ब होता जाता है।
इससे उसको एकोस्टिक, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एकोस्टिक न्यूरोफाइब्रोमा। इससे उसको सुनने में और बैलेंस में दिक्कत आने लगते हैं, उसको चक्कर आने लगते हैं, बैलेंस नहीं बना, सुनने में दिक्कत हो जाती है। सिम्टम्स ग्रेजुअली हेयरिंग लॉस, कि धीरे धीरे जैसे पिक्चर में दिखाया है कि जो एकोस्टिक न्यूरोफाइब्रोमा है, जो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है, क्लियर नंबर 8, तो उसके अंदर न्यूरोमा बन चुका है और यहीं से फेशियल नर्व पासिंग होती है। तो फेशियल नर्व पासिंग, इट इज the acoustic neurofibroma compress on the facial nerve and deformities in facial nerve damage। तो इसमें जो फेशियल नर्व है उसके अंदर डैमेज आ जाता है, जिससे बेल्स पाल्सी वाले सिम्टम्स भी आते हैं। सॉरी, पुअर बैलेंस होता है क्योंकि जो कोक्लियर नर्व है, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व, वो डिफेक्ट होती है, न्यूरोमा हो जाता है। नमनेस एंड वीकनेस इन द आर्म एंड लेग्स, आर्म और लेग है उसके अंदर नमनेस, सुनपन रहता है, हेडेक रहता है, इसके अंदर फिगर में दिखाया। विजन प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंट ऑफ कैटरैक्ट, इसके अंदर विजन प्रॉब्लम्स होती है ऑप्टिक ग्लाइमा की वजह से, फेशियल नर्व डैमेज, मल्टीपल ब्रेन ट्यूमर एंड स्पाइनल ट्यूमर। जब कंडीशन धीरे धीरे एज बढ़ती जाती है, धीरे धीरे इसकी कंडीशन सीवियरिटी होती जाती है। जैसे जैसे न्यूरोफाइब्रोमा का टाइम बढ़ता जाता है, वैसे ब्रेन के अंदर ट्यूमर बनने जाते हैं, बहुत सारी डिफॉर्मिटीज आ जाती है, अर्न फंक्शन डिस्टर्ब होने लगते हैं। डायग्नोसिस चेक करते हैं कि स्किन पे जो कैफे और लेआउट स्पॉट है वो है कि नहीं। आई एग्जाम करते हैं कि आई के अंदर लीस्ट नोड्यूल्स बने हैं कि नहीं, कैटरेक्ट। हियरिंग एंड बैलेंस का एग्जामिनेशन करते हैं, इमेजिंग टेस्ट करते हैं, उसका एक्सा करवाते हैं, स्कैन करवाते हैं, फिर जेनेटिक टेस्ट भी करवाते हैं डायग्नोसिस में। ट्रीटमेंट न्यूरोफाइब्रो कांट बी क्योर बट ट्रीटमेंट कैन हेल्प मैनेज साइन एंड सिम्टम्स। कि न्यूरोफाइब्रोमा वैसे क्योर नहीं कर सकते, लेकिन इसके साइन एंड सिम्टम है उसको मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इनिशियली में अपन को पता चलता है तो उसकी सर्जरी करवा देते हैं, जो ट्यूमर्स उनको रिमूव करवा देते हैं, स्टेरोटिक रेडियो सर्जरी करवाते हैं कि रेडिएशन से उसके जो स्किन के अंदर ट्यूमर है उनको बस्ट कर सकते हैं, और ऑडिटरी ब्रेन स्टेम एंड कोक्लियर का इम्प्लांटेशन करवा सकते हैं। थैंक यू। एंड स्पीकर नंबर 3 कैन स्टार्ट। Good afternoon to all and sir and classmates. My name is Swati Roila and today we talk about Alzheimer disease. स्लाइड विजिबल है? Yes, Swati. एल्जाइमर डिजीज, तो सबसे पहले हम देखते कि एल्जाइमर डिजीज का नाम सुना होगा या फिर कहीं पे भी सुना होगा, कहीं पे पढ़ा होगा। आज हम देखते हैं एल्जाइमर डिजीज एक्चुअल में है क्या। तो एल्जाइमर डिजीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, इसके रूट कॉज, इसके रिपोर्ट क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, और कुछ हाइपोथेसिस जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने दी हैं या फिर किसी साइंटिस्ट ने दी हैं। फिर इसकी पैथोलॉजी पढ़ेंगे, इसके रिस्क क्या है, इसका रिव्यू देखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे कराएंगे, कैसे पता लगाएंगे हम कि एल्जाइमर डिजीज है। अगर किसी को एल्जाइमर डिजीज है तो उसका सपोर्ट क्या करेंगे हम, उसकी केयर जर्नी कैसे करेंगे, और फिर कुछ फैक्ट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं कि एल्जाइमर डिजीज बेसिकली एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो एल्डरी ह्यूमंस में डेवलप होता है, और जिसमें क्या होता है, मेनली नर्व्स का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। और ये सबसे पहले किसने बताया था, एलोइस एल्जाइमर ने इन 1906 में। इनकी एक पेशेंट थी अगस्ते, जिसका नाम अगस्ते था। वो एल्जाइमर डिजीज से उनकी डेथ हो गई थी, और फिर उनकी ऑटोप्सी में इन्होंने ये देखा था कि इनमें नर्व्स का डिस्ट्रक्शन हुआ है। फिर उन्होंने एल्जाइमर डिजीज का क्राइटेरिया बनाया। क्राइटेरिया में उन्होंने लिखा कि एल्जाइमर डिजीज में प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस होता जाता है, डिसओरिएंटेशन होता जाता है, और पैथोलॉजिकल मार्कर्स दिखते हैं
जैसे सेनाइल प्लेग एंड न्यूरोफाइब्रिल टेंगल। सेनाइल प्लेग एंड न्यूरोफाइब्रिल टेंगल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि बेसिकली ये है क्या। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्जाइमर डिजीज characterized by a cerebral deposition of senile plaque that is mainly composed of set of peptide referred to amyloid beta peptides। तो amyloid beta peptides को रेफर करता है अल्जाइमर डिजीज। हम देखते हैं कि जो अल्जाइमर डिजीज है वो अंडर ट्रीटेड और अंडर रिकॉग्नाइज्ड है। वो पहले पता भी नहीं चलती कि अल्जाइमर डिजीज है, या कोई सोचेगा भी नहीं कि अल्जाइमर डिजीज डेवलप हो सकती है। लेकिन अब ये मेजर प्रॉब्लम बन गई है, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल एंड आगे पढ़ेंगे हम रिस्क फैक्टर्स। अल्जाइमर डिजीज एक रेयर कंडीशन है, बट लेटर ये एजिंग के साथ इसका परिणाम है जो, या एजिंग के साथ अल्जाइमर डिजीज बढ़ती जाती है। हमने आप पहले भी देखा है कि एजिंग के साथ डेवलप होती है। जो अल्जाइमर डिजीज है वो इफेक्ट कैसे करती है हमें देखते हैं। तो अल्जाइमर डिजीज है वो फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी को इंटरफेयर करती है, और जो मॉलिक्यूलर लेवल है ब्रेन का या उसको डिस्ट्रक्ट करती है या उसको डिस्ट्रॉय करती है धीरे धीरे, जिससे मेमोरी लॉस होने लगता है और डिसोरिएंटेशन ये सब डेवलप होता है इन लेट एज। अब हम इसके कॉज और रिपोर्ट और फैक्टर देखते हैं। तो कॉज के बारे में तो हम कह सकते हैं कि अभी तक कोई कॉज ऐसा है जो रिस्क जो राइट वाला ब्रेन है वो अल्जाइमर ब्रेन है। तो अल्जाइमर ब्रेन श्रिंक्ड है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है। उसके जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, हिप्पोकैम्पस है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है, उसमें नर्व्स का डिस्ट्रॉय हो चुके हैं नर्व्स। हम देखते हैं कि फ्रॉम दिस पिक्चर इट इज मोस्टली बिलीव्ड टू बी वन ऑफ द मेजर कॉज इफ बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, lifestyle and environmental factors that affect the brain over time. Less than 1% of time, Alzheimer is called specific genetic changes that virtually guarantee a person will develop Alzheimer's disease. There's rare occurrence usually result is in disease onset in late middle age. हमने पहले भी बताया कि लेट मिडल एज में होती है। About 3% of men and women is 65 to 74 have Alzheimer disease. About 3,60,000 new cases of Alzheimer disease diagnosed होते हैं every year. अब हम इसके कुछ बताया कि रूट कॉज तो हमको अभी तक वेल डिफाइंड नहीं है, बट हम इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स देख सकते हैं कि कैसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो अल्जाइमर डिजीज के लिए किसी भी पर्सन को प्रोन करते हैं। तो रिस्क फैक्टर में हम सबसे पहले देखते हैं न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स। न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स में हम सबसे पहले एसिटाइल कोलिन देखते हैं। एसिटाइल कोलिन के बारे में हम कह सकते हैं कि हम, जैसा कि हम सबको पता है कि एसिटाइल कोलिन है वो न्यूरोट्रांसमीटर है, नर्व्स का या नर्व्स के इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिट करता है। बट जैसे अल्जाइमर डिजीज में जो एसिटाइल कोलिन है उसका लेवल लो हो जाएगा, तो ये जो मेमोरी बना रहा है या शॉर्ट टर्म मेमोरी कर रहा है या जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। सोमेटोस्टेटिन के साथ में भी ऐसा भी स्टिम्युलेशन की तरह काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर है। तो सोमेटोस्टेटिन भी अल्जाइमर डिजीज में कम होता जाएगा और नॉन एपिनेफ्रिन के साथ में भी ऐसा ही होगा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कुछ जो किसी भी पर्सन को प्रोन करते हैं अल्जाइमर डिजीज के लिए, जैसे स्मोकिंग है, सर्टेन इन्फेक्शंस हैं, या फिर मेटल्स हैं, या टॉक्सिक कुछ है। अब जो मेन कॉज है या फिर जो जो भी एक हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो अल्जाइमर डिजीज को समझा पाया अभी तक वो है जेनेटिक और इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। तो जेनेटिक और इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर में हम सबसे पहले देखते हैं कि मोस्ट कॉमन जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर डिजीज इज नोन एज एपोलिपोप्रोटीन। एक एपोलिपोप्रोटीन नाम का एक जीन होता है जो एक पेयर फादर से आता है और एक पेयर मदर से आता है, जिससे जाइगोट में 2 पेयर हो जाते हैं। तो अगर हमारे पास अगर किसी भी जाइगोट में किसी भी बेबी में अगर एक जीन भी आया है, एक जीन भी एपोलिपोप्रोटीन का आया है, तो वो
उस पर्सन को अल्जाइमर डिजीज के लिए प्रोन करता है और उसके रिस्क को बढ़ाता है। अब हम इम्यूनोलॉजिकल देखते हैं, तो जो न्यूरो इन्फ्लामेशन है, जो नर्व्स के इन्फ्लामेशन है, वो प्री सिम्टमेटिक स्टेज ऑफ अल्जाइमर डिजीज को प्री सिम्टमेटिक स्टेज ऑफ अल्जाइमर डिजीज से हम क्या समझते हैं, अल्जाइमर डिजीज के लिए वो प्रोन तो हो रहे हैं बट अभी तक कुछ सिम्टम्स ऐसे आए नहीं है, तो जो न्यूरो इन्फ्लामेशन है वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है और उसके प्रोग्रेशन को बढ़ाता है। कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे डाउन सिंड्रोम है, फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी के अल्जाइमर है, क्रॉनिक हाई बीपी है, हेड इंजरी है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है। अब हमने रिस्क फैक्टर तो देख लिया, अब हम कुछ, जैसा कि हमको पता है कि कोई कॉज तो बेसिकली अभी तक वेल डिफाइंड नहीं है अल्जाइमर का, लेकिन कुछ हाइपोथेसिस दी गई हैं कि साइंटिस्ट ने कहा है कि ऐसे हो सकता है, कुछ ने कहा है ऐसे हो सकता है, तो वो हम कुछ हाइपोथेसिस, कुछ एपोलिपोप्रोटीन थ्योरी देखते हैं। तो जैसा हमने ऊपर पढ़ा है कि एपोलिपोप्रोटीन एक जीन है, एपोई जीन भी जिसको कहते हैं, तो ये हमारे अंदर एक पेरेंट से आता है, एक वन फ्रॉम मदर एंड अनदर फ्रॉम फादर। तो किसी भी पर्सन के पास 2 कॉपीज हो गई एपोजीन की। अगर किसी के पास अगर एटलीस्ट 1 एपोई जीन प्रेजेंट है तो वो क्या करते हैं, इंक्रीज योर रिस्क फॉर डेवलपिंग अल्जाइमर्स डिजीज। अब हम कह सकते हैं कि बट नॉट एवरीवन हु हैज 1 और even 2 एपोई जीन develop Alzheimer disease, and the disease occur in many people who don't even have ApoE gene। इससे हम क्या समझते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप में ApoE जीन है तो आप में अल्जाइमर डिजीज होगी ही, और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आप में अल्जाइमर डिजीज हुई है तो आप में ApoE जीन प्रेजेंट है। इससे हम क्या समझते हैं कि ये सिर्फ एक रिस्क फैक्टर है, ये किसी भी पर्सन को अल्जाइमर डिजीज के लिए प्रोन बना रहा है। एपोई जीन का प्रेजेंट होना या ना होना ये कॉज नहीं है अल्जाइमर डिजीज के लिए, ये सिर्फ एक रिस्क फैक्टर है जो किसी भी पर्सन को प्रोन बना रहा है या नहीं बना रहा है। फिर हम एक और जीन थ्योरी, जीन के बारे में देखते हैं जिसका नाम है क्लस्ट्रीन एपोलिपोप्रोटीन, जिसको CLU भी बोलते हैं। ये जीन बेसिकली क्या करता है, जो डेब्रिश बनती है नर्व्स की, जैसे एमाइलोइड बीटा सेल्स हैं, उनको क्लियर करता है, यानी बेसिकली जो ब्रेन डेब्रिश है उनको क्लियर करता है। बट रिसर्च सपोर्ट करती है इस थ्योरी को कि अगर बैलेंस हुआ है क्लस्ट्रीन प्रोटीन में, क्लस्ट्रीन इम्बैलेंस हुआ है, तो जो डेब्रिश है या जो बीटा एमाइलोइड सेल्स है वो सेंट्रल में इकट्ठा होती जाती है और अल्जाइमर डिजीज को डेवलप करने में हेल्प करती है। कुछ और भी जीन है जो अल्जाइमर डिजीज को समझाते हैं, जैसे CR1 है और PICLAM जीन है। फिर हम एक और थ्योरी देखते हैं जो अर्ली ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर डिजीज के लिए दी गई है। तो अर्ली ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर डिजीज है, वैसे तो हमको पता है कि अल्जाइमर डिजीज लेट ऑनसेट होता है, बट अर्ली अगर हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो अर्ली ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर डिजीज है वो बहुत ही रेयर कंडीशन में हो सकता है। अब अगर अर्ली ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर डिजीज हो रहा है तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि ऐसा कोई कॉज तो होगा नहीं जो अल्जाइमर डिजीज को पहले ही डेवलप कर रहा है, तो इसमें कौन रोल करेगा, बेसिकली जीन प्ले करेगा इसमें रोल। तो जो अल्जाइमर डिजीज है वो स्ट्रांगली लिंक्ड होती है जीन से, जो अर्ली ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर डिजीज है, और इसके साइन और सिम्टम्स आते हैं। अब आगे हम देखते हैं, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड 3 genes in which mutation cause early onset Alzheimer disease. If you inherit one of these mutated genes, the genes, अब हम देखते हैं कि जीन कौन कौन से हैं। प्रिकर्सर प्रोटीन, सेकेंड जीन है प्रिसिनिलिन 1 एंड प्रिसिनिलिन 2। तो ये कुछ हाइपोथेसिस थी, अल्जाइमर डिजीज को थोड़ा डिफाइन करती है। अब हम इसकी पैथोलॉजी देखते हैं। तो पैथोलॉजी हमको पता है कि अल्जाइमर डिजीज अटैक नर्व एंड ब्रेन एज वेल एज न्यूरोट्रांसमीटर और ब्रेन और नर्व्स को एक जैसे ही अटैक करती है अल्जाइमर डिजीज। तो द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस पार्ट कॉजेज क्लम्प्स ऑफ प्रोटीन और फॉर्म अराउंड द ब्रेन सेल्स। These clumps are known as plaque.
हमने पहले भी पढ़ा था कि सेनाइल प्लेग बनता है जो पैथोलॉजिकल मार्कर्स होता है। तो हम देख अब द प्रेजेंस ऑफ प्लेग स्टार्ट टू डिस्ट्रॉय मोर कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन सेल्स विच मेक द कंडीशन वर्स। जैसे कि हम इस फोटो में देख रहे हैं कि जो एमाइलोइड बीटा सेल है, एमाइलोइड बीटा सेल कहाँ से आई है? डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्व से आई है। नर्व्स का डिस्ट्रक्शन हुआ है जिससे एमाइलोइड बीटा सेल्स बन गई हैं। अब जो एमाइलोइड बीटा सेल्स है वो एक साथ मिलकर ओलिगोमर बना रही है। अब ये जो एमाइलोइड बीटा ओलिगोमर सेल एक दूसरे से मिलती जा रही है और जो न्यूरॉन्स का साइटोप्लाज्मा उसमें फिनाइल प्लेग बना रही है। अब हम देखते हैं कि जो टाउ होता है, टाउ के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि टाउ जो होता है वो एक प्रोटीन होता है जो एक्सोन की स्टेबिलिटी को बना के रखता है। तो जो ये सेनाइल प्लेग है ये टाउ के साथ मिलती जाती है और न्यूरोफाइब्रिल टेंगल्स एक्सोन्स में बनाती जाती हैं। जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे जो न्यूरल सेल्स है उनकी डेथ होती जाएगी क्योंकि ट्रांस नहीं हो पा रही है। और डिमेंशिया क्या है? लॉस मेमोरी। जो हम कहते हैं कि जो ब्रेन है वेट में वेट उसका कम हो जाएगा और अट्रोफी हो जाएगी। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि सेनाइल आइस में जो मोस्ट कॉन्सिपियस लेजन है और कंसिस्ट करता है फोकल एरिया को जो सेंट्रल कॉर्ड, जिसके सेंट्रल कॉर्ड में एमाइलोइड बीटा सेल्स होती हैं। फिर न्यूरोफाइब्रिल टेंगल्स है। न्यूरोफाइब्रिल टेंगल्स फिलामेंट कलेक्शन है जो न्यूरो फिलामेंट्स होते हैं और न्यूरो ट्यूब्यूल्स का कलेक्शन है। एमाइलोइड एंजियोपैथी, एमाइलोइड एंजियोपैथी से हम समझते हैं कि जो एमाइलोइड बीटा सेल्स, जैसी एमाइलोइड बीटा सेल्स ब्रेन सेल्स में डिपॉजिट हो रही है वैसी एमाइलोइड बीटा सेल्स वेसल वॉल में भी डिपॉजिट होने लग जाएंगी। और ग्रेनुलर वैक्यूलर डीजनरेशन is the presence of multiple small intraneural cytoplasmic vacuoles, some of which contain one or more dark granules called hyrenobodies। जैसा कि हम इस फोटो में देख रहे हैं कि जो लेफ्ट वाला ब्रेन है वो नॉर्मल ब्रेन है और जो राइट वाला ब्रेन है वो एल्जाइमर ब्रेन है जिसमें श्रिंकेज हो चुका है हिप्पोकैम्पस का, श्रिंकेज हो चुका है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का और ब्रेन में एट्रोफी डेवलप हो चुकी है। हम ये देखते हैं अब इस फोटो में हम देख सकते हैं कि एमाइलोइड प्लेग और न्यूरोफाइब्रिल टेंगल्स का है। तो जो ये एमाइलोइड प्लेग बन रहे हैं ब्राउन ब्राउन, ये अब एक्सोन से मिलते जाएंगे और न्यूरोफाइब्रिल टेंगल्स बनाते जाएंगे जो क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को आगे नहीं जाने देंगे, इंफॉर्मेशन को रोक देंगे और खत्म होती जाएंगी, धीरे धीरे कम होती जाएंगी और ब्रेन फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती जाएगी। अब हम साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं सबसे पहले। तो साइन एंड जो सिम्टम्स में सबसे जो भी पर्सन अफेक्टेड है अल्जाइमर डिजीज से उसको डिफिकल्टी होने लग जाएगी अपने फैमिलियर टास्क परफॉर्म करने में, प्रॉब्लम विद लैंग्वेज, डिसओरिएंटेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस, पुअर और डिक्रीज जजमेंट, प्रॉब्लम विद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मिसप्लेसिंग थिंग, चेंज इन मूड और बिहेवियर, चेंजेस इन पर्सनैलिटी। ये सब साइन एंड सिम्टम्स अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट में आएंगे। अब हम कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट देखते हैं कि अगर किसी को अल्जाइमर डिजीज है और हमको पता लगाना है कि अल्जाइमर डिजीज का पता लगा रहे हैं, अगर कोई भी पर्सन है जो हमारे पास आया है जो अबाउ 65 एज है या 74 के मिड में है एज है उसकी और वो बोल रहा है कि मैं चीजें भूल जाता हूँ या ऐसा कोई सिम्टम और हमको लग रहा है कि हाँ अल्जाइमर डिजीज का एक बार हमें टेस्ट कराना चाहिए, तो हम क्या क्या कराएंगे? तो सबसे पहले हम उसका साइकेट्रिक असेसमेंट कराएंगे, मेंटल स्टेटस देखेंगे कि क्या वो अपने काम याद रख पा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि उनको याद है कि वो कहाँ है, कहाँ आए हैं, उनका घर का एड्रेस, उनका नाम, ये सब हम पूछ सकते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में हम ब्रेन इमेजिंग, तो सबसे पहले सीटी स्कैन, एमआरआई जैसे हम नॉर्मल
है, हम देख सकते हैं, हमको पता है सीटी स्कैन और एमआरआई के बारे में। थर्ड है पीईटी। तो पीईटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके फुल फॉर्म होती है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। इसका क्या मतलब होता है? पीईटी क्यों कराते हैं हम? टिश्यू के वर्किंग के बारे में हमें बताते हैं कि वो वर्क कैसे कर रहा है, सही से वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। फोर्थ टेस्ट है SPECT। इसके फुल फॉर्म है सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। SPECT। तो इसमें क्या होता है, हम गामा रेज यूज करते हैं और हम किसी भी ऑर्गन या किसी भी को ये पता लग गए कि कहीं रिड्यूस तो नहीं हो रहा है साइड ब्रेन का, कहीं नर्व्स का डिस्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी करा सकते हैं। CSF एग्जामिन हम करा सकते हैं। CSF एग्जामिन क्योंकि जो एमाइलोइड प्लेग है वो CSF में भी मिल सकते हैं। जो डिस्ट्रक्टेड न्यूरॉन्स है, डिस्ट्रक्टेड न्यूरॉन पार्ट्स है, मिल सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, इसके बारे में हम सबको पता है, EEG। तो ये क्यों कराते हैं हम? क्योंकि हम इसमें हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज क्या है ब्रेन की, और इलेक्ट्रोमायोग्राम जिससे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ मसल्स। फिर अगर किसी को अल्जाइमर डिजीज अगर हमको पता लग जाती है हमारे परिवार में या फिर किसी भी पेशेंट के, तो हम उनको क्या प्रेफर करेंगे? हम उनको बोलेंगे कि आप सपोर्टिव केयर है वही सबसे ज्यादा जरूरी है अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट के लिए, जो उनके बर्डन और स्ट्रेस को कम करता है और एक बफर लेवल उनको प्रोवाइड कराता है। दूसरा हम देख सकते हैं कि हम कोई अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट के लिए हम किसी भी पर्सनल या नर्स को रख सकते हैं जो उनकी केयर करे, उनकी ड्रेसिंग को ध्यान में रखे, असेसमेंट विद फाइनेंस, अदर डेली एक्टिविटीज उनको कराते रहे। केयर जर्नी के बाद हम बिहेवियर अप्रोच दे सकते हैं, किसी को भी इमोशनल ओरिएंटेशन अप्रोच दे सकते हैं किसी पेशेंट को, और कॉग्निशन ओरिएंटेशन अप्रोच और स्टिमुलेशन ओरिएंटेड अप्रोच, ये सब से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करा सकते हैं अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग, द मोर एजुकेशन यू हैव, द लोअर यू रिस्क गेटिंग AD. You have lower odds of getting AD if you keep your brain active in old age by doing activities. इससे हम क्या समझते हैं कि अगर हम ओल्ड एज में जा रहे हैं तो अगर हम अपने ब्रेन को एक्टिव रखते हैं, ओल्ड एज में भी हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं, तो हम अल्जाइमर डिजीज डेवलप होने के कम चांसेस होते हैं, क्योंकि नर्व्स एक्टिव रहेंगी तो अल्जाइमर डिजीज कम होने के। थैंक यू। Next, continue speaker number 4. Good afternoon, everyone. I'm Swati Ambesh, speaker number 4. I will be here to discuss my topic, Parkinson's disease. Slide visible है? हाँ स्वाति। यस। Okay. तो Parkinson's disease क्या है? Parkinson's disease is a progressive disorder of the nervous system that affects movement. Parkinson's disease का most well-known sign है tremors. The disorder also commonly causes stiffness or slowing of movement. In the early stage of Parkinson's disease, face may show little or no expression, or arms may not swing when walk. Speech may become soft or slurred over time. Although Parkinson's disease can't be cured, but medication may markedly improve symptoms. In occasional cases, doctor may suggest surgery to regulate certain regions of brain and improve symptoms. History: Parkinson's was first described in an essay
essay on the shaking pulse in 1817 by William. That's why we call it Parkinson's disease. However, much focus has been placed on neuron in brain region associated with the overmotor symptoms, notably in brain called the substantia nigra compacta. ये substantia nigra. This region forms a major pathway in the brain that's a critical of facilitating movement in Parkinson's disease neuron, leading to the malfunction of this pathway and characteristic. जब भी नॉर्मल न्यूरॉन्स नॉर्मल होते हैं तो डोपामिन लेवल नॉर्मल होता है और नॉर्मल मूवमेंट चलती है, पर जब न्यूरॉन्स पार्किंसन से अफेक्टेड होते हैं डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिससे मूवमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं और लॉस ऑफ डोपामिन की वजह से रिजल्ट होता है कि काइनेशिया, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेशिया रिप्लेस और मिमिक डोपामिन आर ऑफ्टन यूज्ड टू ट्रीट these modes of defects. Etiology. In Parkinson's disease, certain nerves injure in brain called dopamine. When dopamine level decrease, it causes abnormal brain activities leading to unknown. But several factors appear to play a role of cause Parkinson's disease, but these are uncommon aspect in rare cases with many family members affected by Parkinson's disease. Environmental triggers. कुछ toxins or environmental factors may increase the risk of later Parkinson's disease, but the risk is relatively small. Many changes occur in brain of people with Parkinson's disease, including the presence of Lewy bodies. Here is Lewy bodies. Specific substances within brain cells are microscopic markers of Parkinson's disease. These are called Lewy bodies, and researchers believe that Lewy bodies hold an important clue to the cause of Parkinson's disease. Alpha-synucleins is found within Lewy bodies. अब alpha-synucleins क्या है? Alpha-synucleins is a presynaptic neuronal protein that is linked genetically or neuropathologically to Parkinson's disease. Although many substances are found within Lewy bodies, scientists believe the most important of this is the natural and widespread protein called the alpha-synucleins. It is found in all Lewy bodies in class for that cells can't break down. Symptoms. Parkinson's disease symptoms and signs may vary from person to person. Early sign may be mild and may go unnoticed. Symptoms often being one-sided of the body and usually remain worse on the side even after symptoms begin to affect both-sided. Parkinson's sign and symptom may include tremors. Tremors or shaking usually begin in a limb, often hand and fingers. One characteristic of Parkinson's disease is a tremor of hand when it's relaxed. Slow movement disease may reduce ability to move and slow movement, making simple tasks difficult और टाइम कंज्यूमिंग. उनको एक चेयर से उठने में भी बहुत टाइम लग जाता है, बहुत स्लो वॉक करते हैं और जब वो वॉक करते हैं तो उनके जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं. बॉडी द स्टिफ मसल कैन लिमिट रेंज और मोशन एंड कॉज पेन. Impaired posture and balance. Posture may become stopped and improper gait. Improper gait can be ateropulsive or retropulsive. Ateropulsive means a forward fascinating gait like this, or retropulsive is a backward fascinating gait. Balance problem as a result of Parkinson's disease, loss of automatic movement in Parkinson's to perform unconscious movement, including blinking, smiling, swinging arm when walk, may no longer gesture when talking. Speech changes. Speak softly, quickly, slur, hesitate before talking, and speech may be more or monotone rather than written. A speech language pathologist may help improve speech problem. Writing changes. Writing may appear small or become difficult.
Risk factors of Parkinson's disease include age. People usually develop the disease around age 60s or older. Heredity, having a close relatives with chance that you will develop the disease. Sex, men are more linked to develop Parkinson's disease than are women. Exposure to toxins, ongoing exposure to herbicides and pesticides may put at a slightly increased risk of Parkinson's disease. Complications, thinking difficulty, experience cognitive problems and thinking difficulties which usually occur in the later stage of Parkinson's disease. Depression and emotional changes. People with Parkinson's disease may experience depression. Receiving treatment for depression can make it easier to handle the other challenges of Parkinson's disease. May also experience other emotional changes such as fear, anxiety, and loss of motivation. Swallowing problem may develop difficult condition progress. In typical Parkinson's disease, this is rarely a severe problem. Saliva may accumulate in mouth and due to slow swallow leading to dropping. Sleep problems and sleep disorder. People with Parkinson's disease often have sleep problem, including waking up frequently throughout the night, waking up early, or asleep during the day. Bladder problem. Parkinson's disease may cause bladder problems, including being unable to control urine or having difficulty urinating, constipation. Many people with Parkinson's disease develop constipation mainly due to a slower digestive tract. Also experience blood pressure changes, may feel dizzy or light headache when stand due to sudden drop in blood pressure. Smell dysfunctions, उनको प्रॉब्लम होती है स्मेल का सेंस करने में, स्मेल को दो चीजों की स्मेल्स में डिफरेंस करने में. फैटिगो, many people with Parkinson's disease lose energy and experience fatigue and no pain. Many people with Parkinson's disease experience pain in their bodies. Sexual dysfunction, some people with Parkinson's disease notice decrease in sexual desire or performance. Test and diagnosis. No test exists to diagnose Parkinson's disease. Parkinson's disease diagnosed based on medical history, a review of signs and symptoms, and a neurological, physical, or clinical examination. Accurate diagnosis is possible only with continuous observation of evolving clinical signs and symptoms. The diagnosis is made on the basis of history and clinical examination, handwriting samples, speech analysis, interviews, questions that focus on developing symptoms, and physical examination are used in preclinical stage to detect early manifestation of disease. Treatments. Parkinson's disease can't be cured, but medication can help control symptoms after dramatically. In some later cases, surgery may be advised. May also recommended lifestyle changes, especially ongoing aerobic exercises. In some cases, physical therapy that focus on balance and stretching also is important. Medication can help for manage problems with walking, movement, and tremors by increasing brain supply of dopamine. However, dopamine can't be given directly as it can't be enter brain. Lifestyle and home remedies. The cause of Parkinson's is unknown. Proven when to prevent the disease also remain a mystery. However, some researches has show that caffeine, which is found in coffee, tea, and cola, may reduce the risk of developing Parkinson's disease. Green tea also will reduce the risk of developing Parkinson's disease. Massage therapy can reduce muscle tension and promote relaxation. These are rarely covered by health insurance.
acupuncture. During an acupuncture session, a trained practitioner inserted tiny needles into many specific points on body, which may reduce pain. Tai Chi. Tai Chi, an ancient form of Chinese exercise. Tai Chi employs slow following motion that may improve flexibility, balance, and muscle strength. Tai Chi may also prevent falls. Several forms of Tai Chi tailor from people of any age or physical condition. Yoga. In yoga, gentle stretching, movement, and pose may increase flexibility and balance, may modify most poses to fit physical abilities. Alexander techniques. This technique which focuses on muscle posture, balance, and thinking about how use muscle may reduce muscle tension and pains. Meditation. In meditation, quietly reflect the focus mind on an idea or image. Meditation may reduce stress and pain and improve senses to well-being. Music or art therapy. Music or art therapy may help to relax. Music therapy helps some people with Parkinson's disease to improve their walking and speech. Participation in art therapy such as painting or ceramics may improve fine motor skills and strength and help express motion. Pet therapy having increased flexibility and movement and improve emotional health. Pet therapy एनिमल असिस्टेंट थेरेपी होती है जिसमें ट्रेन डॉग्स और कैट्स को पेशेंट के साथ रखा जाता है उनकी सपोर्ट्स के लिए. वो उनको इमोशनल डेली एक्टिविटीज में सपोर्ट करते हैं. वो इम्प्रूव करते हैं पेशेंट के सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव फंक्शंस को. एंड पेट्स हेल्प टू डिक्रीज distress and improve patient's mood. Thank you. I love to share a video. क्या वीडियो शो हो रही है? यस हो रही है शो. Yes. जैसे आप देख सकते हैं कितना स्लो अपना वर्क कर रहे हैं इनसे और इसमें इनको लिखने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है. एड्रेस कंडीशन में इनको ट्रिमर्स आ रहे हैं. देखिए कितना स्लो स्टेप्स रख रहे हैं वॉकिंग में. थैंक यू. Good afternoon, everyone. I am Ritu Cinema, and my topic today's presentation is homeopathy, management of nervous disorder. स्लाइड शो हो रही है.
नहीं, नहीं ऋतु। एक सेकंड। Slide sorry. Okay. So let's start with homeopathy management of nervous disorder. Introduction of homeopathy. The basic principle of homeopathy is that a substance trigger a certain disease can also be used to treat the disease. This is referred to as the law of similars. Second point is like cures like principle. Homeopaths also believe that shaking and diluting the substance increase its potency. This process है potentization, succussion. This form of alternative medicine was first discovered by German physician Dr. Christian Friedrich Hahnemann. ये तो सबको पता ही है. And now, how homeopathy help? Homeopathy strength and stamina को increase करती है. Clear mind and calm emotions में relieve करती है. All organs and system improve in function and efficiency. Refreshing sleep, mental alertness, flexibility, adaptability and vitality. Sense of well-being. And now, how homeopathy help in approach of management of neurological disorder? Homeopathy is a vast therapeutic system, not possible to learn all, but correct application of similia can treat and relieve neurological disorder and suffering to some extent. ये constitutional medicines होती हैं, जैसे hypercum, arnica, calendula, ledempal are few names in homeopathy, which we use successfully in nerve injuries as basic medicine. Argentum nitricum, plebamate and many more medicine injury के लिए जो medicines हैं. Investigation play important role in even in homeopathy treatment as help as in understanding the disease, prognosis, and so help in convincing the patient and also increase the self-confidence. Our aim should not be only relief but also prevent recurrence. Homeopathy gives better relief from nervous disorder without any side effect. So let's start with homeopathy में हमें क्या-क्या जब भी हम homeopathy medicine दे रहे हैं तो क्या-क्या प्रिवेंशन होने चाहिए. तो प्रिवेंशन को क्लासिफाई 4 ग्रुप: प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. प्राइमरी जैसे हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. सेकेंडरी जैसे अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट. टर्सरी जैसे डिसेबल. लास्ट पॉइंट इज होम्योपैथी ट्रीटमेंट यानी होम्योपैथी रेमेडीज. सो वैसे तो बहुत सारी ड्रग है पर कुछ ड्रग बताने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे. जैसे नेट्राम्योर है जो कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन है. जूटा है जो टेंडन इंजरी के लिए. लेकेसिस जो कॉन्स्टिट्यूशनल है. अर्जेंटम नाइट्रिकम, जेल्सिमियम, हाइपरकम जो स्पाइनल इंजरी, सैंगुनेरिया एंड सिक्यूटा यानी एपिलेप्सी के लिए. कल्केरिया कार्बोनिका ऑल्सो नोन एज कल्केरियम कार्बोनेट और कल्केरिया कार्ब. इट इज यूज्ड इन होम्योपैथी और ट्रीट सिम्टम ऑफ depression and anxiety. Chamomilla, derived from German chamomilla, it is used in homeopathy to treat irritability, impatience, etc. It is most often prescribed to children. Ferrum forcicum, also known as ferrum phos या iron phosphate, it is used to treat symptom of low energy and anemia. Mercurius, also known as quicksilver, it is used to treat symptom of sweats, shaking, nausea. Now precautions prescribed by a homeopathy practitioner. Those who are taking homeopathy remedies should also avoid taking antidotes या other substance. Avoid coffee, peppermint जो toothpaste and mouth washes, camphor lotions में जो है, and very spicy food should also be handled with care and should not be touched with the hand or fingers. As we all know that our lifestyle, diet and daily habits affect our mental health. So we should consume more grains, fruit and vegetable, dairy, meat, oil and sweet. And we should try to avoid junk food and stop overthinking and do something creative and do meditation. Thank you.